کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا، اور اس کے لیے میں آنریبل ممبر الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سر آڈیو اوکے سر اوکے نہیں مجھے پیچھے آواز نہیں جا رہی نا اس کی۔ چیف صاحب والا چیک کریں، چیف صاحب والا چیک کریں۔ سر نیچے سے مائک آن۔ ہلو، کہاں سے؟ اب بولیں، بسم اللہ کریں۔ ہلو ہلو اس میں بولیے، اس میں آ رہی ہے، اس میں آ رہی ہے۔ ہلو، ہاں اس میں آ رہی ہے۔ اس کو بتا دیں راشد۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چیف صاحب میں الیکشن کمیشن کے بیاف پہ آپ سب احباب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس اہم تقریب میں شرکت فرمائی۔ اب میں آنریبل چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائر غلام مصطفیٰ مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا دل کی عطا گرائیوں سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کیا، بلکہ ہماری جس قدر ہم سے متعلقہ مسائل تھے ان کو بخوبی اپنی پریس میں جگہ دی، اور وہ تمام چیزیں پبلک کو، عوام کو براہ راست بر وقت منتقل ہوتی رہی۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ آپ کے نوٹس میں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری تقریباً 1 سال 3 ماہ کے بعد ہوئی، اور اس ڈیلے کی وجہ سے 20 فروری 2026 کو چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ سے میں نے الگ اٹھایا، اور سب سے پہلا جو کام تھا وہ صاف شفاف لسٹوں کا تیار کرنا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ کام شروع کیا۔ عبوری لسٹیں جو ہیں وہ ہم نے بنوائیں، جن میں بہت ساری غلطیاں آپ نے بھی نوٹس کی اور لوگوں نے بھی کی، اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کی ایک وجہ، جو بڑی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں کمپیوٹرائز ووٹر لسٹ کے لیے ایک سسٹم ہم نے لگایا تھا، نادرا کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا، کنیکٹ کیا تھا۔ اس میں ڈیٹا انٹری کرتے وقت کوئی غلطی ہوگی، کوڈ نمبر یا بلاک نمبر صحیح درج نہیں ہوئے، تو جس کی وجہ سے ووٹ ادھر ادھر درج ہو گئی، اور یہ بڑے پیمانے پر یہ بات ہوئی۔ مثلا کوٹلی کے ووٹ جو ہیں وہ منگ میں آ گئے، کھڑی شریف کے چک سواری میں چلے گئے، نیلم کے ووٹ جو ہیں وہ ادھر چھتر میں آ گئے۔ تو یہ چونکہ عبوری تھی اور غلطیوں کا ہونا ممکن تھا، لیکن پھر آزاد کشمیر انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے افیسران نے بیٹھ کر ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور نادرا کا دفتر بھی ہم نے وزٹ کیا، میں نے اور ممبر صاحب نے، اور نادرا نے جو تعاون کیا ہمارے ساتھ وہ مثالی تھا۔ اس مرحلے پر آپ کی وسادت سے ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں، جو تعاون انہوں نے کیا ہمارے ساتھ۔ تو آزاد کشمیر میں 2016 کے بعد 2021 کی ووٹر لسٹ تھی۔ اب 2026 کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99% ووٹر لسٹ جو ہے صاف شفاف اور اغلاط سے پاک ہے، اور یہ آپ کو علم میں ہے کہ یہ ایک صاف شفاف الیکشن کی بنیاد ہے۔ اگر ووٹر لسٹ درست نہیں ہوگی تو الیکشن جو ہے اس کا سارا عمل جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے۔
इलेक्शन के बारे में बहुत सारी क्वार्टर से, आवाम से, लोगों से ये शकूक व शुबात थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का एक ही स्टांस रहा है कि इंशाअल्लाह फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है, और हम उससे कमा हक़ व पूरा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो आज अल्लाह ताला के फजल से वो मरहला आ गया है कि बाकी तैयारी के बाद पोलिंग डेट मुकर्रर की है, वो है 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026। और कागजात नामजदगी का ये अमल जो है ये 9 जून से लेकर 19 जून तक जारी रहे। बाकी आपको उसके बाद स्क्रूटनी है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ये हमको एक कापी मुहैया कर रहे हैं, उसमें वो सारी तफसील जो है वो दी हुई है। फाइनल जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो लगेगी इंशाल्लाह 27/7/2026 को, और उसके बाद इलेक्शन जो 27 को मैंने आपको बताया कि वो होगा। तो आज से हमने ये फ़ैसला किया, इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये फ़ैसला किया है कि कानून के तहत तमाम पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है उन पर पाबंदी आयद की जाती है। और ऐसी तमाम स्कीमें जिसमें खंभों, दरख्तों की तरसील या बाकी जो फ़ौज और रेंजर्स की फराहमी की तहरीकी है, जिस पर इंशाअल्लाह ताला कभी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है फ़ौज और रेंजर्स और दीगर पैरामिलिट्री जो अदारे हैं उनकी निगरानी में होंगे। और एक दफ़ा फिर मैं बहसीत चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन इस बात का इहादा करता हूँ कि इलेक्शन फ्री, फेयर और किसी भी शक व शुबा से इंशाअल्लाह बालातर होंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि लोग अपना हक़ राय दही आज़ादी से इस्तेमाल करें और किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होने देनी और ना इंशाअल्लाह होगी। तो ये आज की इलेक्शन को पुरअमन मुनक़्क़द करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि आपका बहुत बड़ा किरदार है और हमें हासिल रहा है, तो आइंदा भी मैं यही तवक्को करता हूँ कि आप अपनी जो पहली सी मोहब्बत है वो हमारे साथ जारी रखेंगे, और जो चीज़, जो पॉलिसी या जो इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होती हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से आप आवाम को बराह रास्त करते रहेंगे। तो जब भी आपको हमारी किसी इत्तलात की ज़रूरत होगी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे फोकल पर्सन है, मैं भी हाज़िर हूँ, मेंबर साहब भी हाज़िर हैं, आप बराह रास्त भी रब्ता करके हमसे पूछ सकते। तो बहुत शुक्रिया। हमारा तो ईमान है कि इलेक्शन हर सूरत में आइन का तकाजा होंगे और पुरअमन होंगे। तो जो हालात हैं, तो जो डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल फराहम करे जिसमें आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इलेक्शन जो है वो हो। तो जो भी Margin seating. जी, ये जो डेवलपमेंट की जो एडीपी में स्कीमें मंजूर होकर शामिल हैं उस पर पाबंदी नहीं होगी, जो चूँकि एडीपी में है और वो तहत कवायद बनी हुई है। अलबत्ता नई स्कीमों के इजरा पर हमने पाबंदी की है। नई स्कीमें मसलन उसमें
कोई नई चीज़ अब नहीं दी जा सकेगी। उसमें कोई ऐसा चीज़ मटेरियल या ऐसी चीज़ें जो مثلا खंबे तकसीम होते हैं, दरख्त तकसीम होते हैं, पाइप तकसीम होते हैं, तो ये चीज़ें वोटर्स की उसकी राय को मुतासर करती हैं। इनकी तरसील पर पाबंदी लगाई है हमने। जनाब चीफ इलेक्शन एक मिनट, जो आपने बताया कि पाकिस्तान में जो 12 सीटें हैं उन पर भी शेड्यूल उनके लिए भी यही शेड्यूल है, और वो इंशाअल्लाह ताला उन पर भी इलेक्शन जो है इसी दिन 27 जुलाई को मुनक्कद होगा। वो इलेक्शन करने के लिए हमने उसकी एक पुरानी एक हिस्ट्री है। पहले जुडिशरी वहाँ कराती थी, जब पाकिस्तान में जुडिशरी को विड्रा कर लिया है इलेक्शन से, तो वहाँ फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले की मदद से इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन अफसर और उनके रीजनल अफसर जो होते हैं, वो इलेक्शन ऑफिसर, वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो वही अमला भी मुकर्रर करते हैं, वहीं पोलिंग होती है। वो पोलिंग भी इंशाल्लाह इसी तरह इंतज़ामात के तहत होगी जिस तरह आज़ाद कश्मीर में फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती हम यकीनी बनाएंगे, वहाँ भी इसी किस्म की सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की जाएगी। और वो पोलिंग भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है, जिस तरह 2016 में पुरअमन गैर जानबदार और विदाउट एनी इंटरफेरेंस हुई है, इस तरह हो। सर ये वोटर की तादाद क्या है? इन 33 हफ्तों में क्या वजह है? ये देखते हैं। ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो वोट हैं वो 33,65,839 है, और जो माजर मकीम पाकिस्तान है उनके 4,38,546 वोट हैं। तो ये उनकी है तादाद। सर आपने कहा कि 99% वोटर लिस्ट जो है वो आप दावे से कह सकते हैं कि एरर फ्री है। जी जी। तो पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं शिकायत तो उनके बारे में ज़्यादा होती है कि सब्जेक्ट वोटर बनाए जाते हैं, उसको आपने कैसे जी जी उस इल्ज़ाम को कैसे एड्रेस किया? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बाज़ शिकायतें जो होती हैं वो किसी ठोस सबूत और मवाद की बुनियाद पर नहीं होती हैं। गुजरात वाले से कल एक गुजरात से बल्कि एक वकील आए जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वकील हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरी फैमिली के और कोई 500-600 वोट उन्होंने गिनवाए कि ये 2011 में भी थे, 2016 में भी थे और 2021 में भी थे, लेकिन अब की वोटर लिस्ट में वो वोट नहीं है। तो मैं खुद परेशान हुआ कि जब इतनी वोटर लिस्टों में ये वोट थे, तो उसने शिकायत की कि जी वहाँ अमला नहीं गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे समाअत नहीं किया गया, मैंने दरख्वास्त भी दी करेक्शन के लिए। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को बुला के कहा कि ज़रा इसको चेक करें। पता चला कि उनके सारे वोट बल्कि इजाफी वोट आज की लिस्ट में दर्ज हैं। वहाँ शिकायत मतलब उनका कोई मसला ही नहीं था, वो उन्होंने ये तकलीफ़ नहीं की कि जाके वो उसको चेक करें। इसके अलावा हमने जो है राब्ता अफसरान भी मुकर्रर किए, लोगों को बताते भी रहे। मसलन अगर किसी ने बर वक्त हमें किया है, राब्ता हमसे किया है, तो हमने खुद रिवाइजिंग वाले को कानून बताकर वोट दर्ज करवाएं। तो कोई ऐसा मसला हमारे लिए पैदा नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई अगर कुछ लोगों के रह गए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन इस वक्त तक जो लिस्ट है वहाँ भी बनी है। कुछ शिकायत वो हैं जो अनाद पर मबनी है। मसलन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग वो कर रहे हैं, तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये वोटर सही नहीं है, ये कश्मीरी वोटर नहीं है। जो मेयार हमने मुकर्रर किया है, जो कानून में दिए गए उसके मुताबिक वो ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वोट सर एक थोड़ी सी बता चाहिए, ये जो इलेक्शन है इसमें पैरामिलिट्री, सिविल आर्म फोर्सेस और आर्मी होगी। आर्मी भी होगी। लास्ट टाइम आर्मी नहीं थी, सिविल आर्म फोर्सेस नहीं, हमने आर्मी की पहले तैयारी की है और बाकी चीज़ें बाद में ज़रूरत के मुताबिक नहीं। इस वक्त तक हुकूमत की जानब से इलेक्शन के इनकाद के सिलसिले में जो हमने जो चीज़ मांगी है उन्होंने भरपूर तावन किया है। हमें 75 करोड़ रुपए मिले, और उसके बाद ये जंग हुई है जो ईरान की और अमेरिका की, इसकी वजह से शायद कोई
थोड़ा सा चीज़ें बढ़ जाएं तो वो भी हमें मिल जाएंगे, तो और कोई अभी हमने मज़ीद डिमांड नहीं की है। जहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट होता है 9 तारीख से इख्तियार शुरू हो रहा है, इस दौरान ये आपका पोलिंग का जारी रहेगा। इलेक्शन मुतासर होंगे या उस वजह से आपने कोई ऐसी परिस्थिति की है कि अगर उनका धरना जो है वो लंबा चलता है, लंबा चलता है तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन क्या आपकी परिस्थिति है? देखें जी, इलेक्शन के दौरान ये शेड्यूल के मुताबिक कागजात एक दफ़ा एक एक करके सवाल एक एक करके पूछे, मैं आपको जवाब दूं तो इस तरह सबको वक्त तो मेरी इतना नहीं है। वो जो इलेक्शन जो एक्शन कमेटी की जो कॉल है, अगर वो धरना देते हैं या लॉन्ग अरसा वो चलती है तो चीज़ें मुतासर तो होती हैं। तो उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो शेड्यूल आपने उस प्रोग्राम में तहत कानून तब्दीली कर सकते हैं। सर अभी आपने ऐलान किया कि जो माजूद 12 सीटें उनका इलेक्शन भी साथ ही, आपने ऐलान किया कि जो माजूद 12 सीटें उनका इलेक्शन भी साथ ही होगा और साथ में अवामी जब कमेटी का एहतजाज भी इसी वजह से खींचा कि 12 सीटें न हो। जब पीपल्स पार्टी ने ये इशारा किया, देखें जब तक पीपल्स पार्टी ने ये इशारा भी दिया कि हम चाहते हैं कि लखनऊ गेट की सीटें अगर उनको दी जाएँ। ये पॉलिटिकल इशू है कि उनको किस हैसियत में इशू रिजॉल्व किया जाता है, ये सीटें ख़त्म हो सकती हैं, उनको किस मद में किस हेड में किसी और में कौंसिल में लिया जाए, ये है गवर्नमेंट का और आइनी तरमीम का मामला। इलेक्शन कमीशन हैज़ नथिंग टू डू विद इलेक्शन शेड्यूल जो मुतासर होगा उसमें आपके पास कितना टाइम है कि आप आगे इसको ले जा सकते हैं? देखें वो हमने तो प्रॉपर टाइम पर शुरू कर दी। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इवेंट आता है कि इलेक्शन मुतासर होता है तो फिर जब हालात साजगार होंगे तो इलेक्शन होंगे। सर बहुत